Good morning, everyone. So we are doing our chapter first of economics, which is the story of village Palampur, and this is the story of a village through which they are wanting us to understand, and they are trying so that things are clear to us about the production process. And specifically in detail, they are talking about agriculture. उसके बाद they will talk about the non-farming activities. So we can understand the whole production, or we can basically understand how our villages work, what are their economic activities through this chapter, through this imaginary village which resembles a lot to any other village of North India. So when we started with the chapter, we did about the basic description of the village. Then we did about the factors that are required for production, which were land, labor, capital, and human capital. Then we did the first factor of production in detail, that is land, where we studied that since land is fixed, so how do we increase the production on the same piece of land, for which we studied basically the multiple farming, multi-crop farming, and along with that we also did the modern methods of farming. And then we did the green revolution, what are its positive and the negative effects. So with this, and then how the land is distributed, and what are the, you can say, final products after using the modern techniques, and why now there is a need to move back to the more organic type of agriculture for preservation of land and for protecting our environment, and many other reasons that we have already done. So today we'll move on to the next factor of production, or the next requirement of production, which is labor. Now, labor is the next necessary factor of production, and we know that farming requires, because here we are specifically initially talking about farming. So we know that farming is something which requires lot of labor. बहुत ज़्यादा इसमें काम करना पड़ता है. तो generally यहाँ पे labor कैसे provide होता है, that we will do. The first thing is, जो small farmers होते हैं वो तो जनरली अपने फैमिली मेंबर्स ही सारे लोग मिलके क्या कर लेते हैं, कल्टीवेशन कर लेते हैं इन द फील्ड. सो दे एक्चुअली डोंट रिक्वायर एनी एक्स्ट्रा लेबरर फ्रॉम आउटसाइड. उनको कोई हायर नहीं करना पड़ता लेबरर. वो लोग क्या करते हैं, छोटा सा उनका फार्म लैंड होता है, तो वो अपने आप उसी एरिया में अपनी फैमिली के साथ मिलके ही सारा प्रोडक्शन प्रोसेस और सारी कल्टीवेशन कर लेते हैं. बट जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं, जिनके पास बहुत बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, एंड दे आर ऑब्वियसली कंपैरेटिवली रिच ऑल्सो, तो वो हायर कर सकते हैं दूसरे लोगों को अपने फार्म पे काम करने के लिए, जिनको हम बोलते हैं फार्म लेबरर्स. और ये जो फार्म लेबरर्स हैं, ये कहाँ से आते हैं? ऑब्वियसली ये जो है ये इन लोगों में से आएंगे जिनके पास या तो लैंड नहीं है, यानी लैंड नहीं है, तो ऑब्वियसली वो काम ढूंढेंगे, तो उनको ये लोग काम दे देते हैं कि आप हमारे फार्म पे काम कर लो, इसके बदले में वी विल गिव यू दिस मच ऑफ वेज. इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनकी जो इनकम है वो सिर्फ फार्मिंग से पूरी नहीं होती है, उनको कोई ना कोई एक्स्ट्रा काम करना ही पड़ेगा. तो वो लोग भी क्या करते हैं, काम कर लेते हैं ऑन द फार्म्स ऑफ दीज मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स, और इसके बदले में ऑब्वियसली उनको वेजेस मिल जाते हैं. जो वेजेस है वो कैश में या काइंड में कैसे भी मिल सकते हैं, बट उनकी जो इनकम है वो सप्लीमेंट हो जाती है यहाँ पे. अब जो ये फार्म लेबरर्स है, ये वो लोग हैं जो लैंड, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि लैंडलेस फैमिलीज या फिर जो स्मॉल लैंड पे काम करते हैं. और पर जब ये लोग फार्मिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं सारा हार्डवर्क तो इनका ही है, मेहनत तो इनकी है, बट उनका क्रॉप के ऊपर कोई राइट नहीं होता. जितना भी हार्वेस्ट हुआ है, जितनी भी यील्ड है, वो सारी की सारी किसकी है? जो ओनर है उस लैंड का, उसकी है. उन लोगों को, जो फार्म लेबरर्स है, जो काम करते हैं, उनको इसके बदले में सिर्फ और सिर्फ क्या मिलते हैं? वेजेस मिलते हैं. और वेजेस जो है वो ऑब्वियसली जितना उन्होंने काम किया है, जितने एरिया पे, या वो ये भी डिपेंड करता है कौन सा क्रॉप है, तो उसके हिसाब से उनको
वेजेस मिलते हैं। जो वेजेस है वो या तो कैश में मिलते हैं या काइंड में मिलते हैं। काइंड से मतलब है यहाँ पे एग्जाम्पल क्रॉप, यानी सपोज इफ अ लैंडलेस लेबरर इज गोइंग टू वर्क ऑन द फार्म ऑफ अ लार्ज फार्मर, देन द क्रॉप दैट इज ग्रोन ऑन दैट लैंड, चाहे वो व्हीट हो, चाहे वो राइस हो, शुगरकेन हो, जो भी है, उस क्रॉप में एक छोटा सा जो हिस्सा है, एक छोटा सा शेयर जो है वो लोग उन वेज लेबर को दे देते हैं। So this is how the labor is provided to the large farmers and the medium farmers, क्योंकि स्मॉल फार्मर्स तो अपने आप में काम करते हैं और स्मॉल फार्मर्स की जो इनकम है और लैंडलेस की जो है सप्लीमेंट हो जाती है जब इन्हें लार्ज फार्मर्स के प्लॉट पे लैंड पे काम मिलता है। अब जो इनकी वेजेस है वो भी वेरी होती है, यानी अलग होती है फ्रॉम रीजन टू रीजन, फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। अगर महंगा वाला क्रॉप है या सपोज जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, प्लांटेशन वाला, तो उनको वेजेस ज्यादा मिलती है। और इसके अलावा फार्म एक्टिविटी जैसे हार्वेस्टिंग का अलग वेज होता है, सोइंग पीरियड का अलग वेज होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन कौन सी वाली फार्म एक्टिविटी आप कर रहे हो, उससे भी आपके वेजेस जो है वो वेरी करते हैं। अब इसके अलावा वेरिएशन इसमें भी है कि आपको कितने टाइम पीरियड के लिए काम मिल रहा है। हो सकता है किसी को तो डेली बेसिस पे, भाई बहुत अमीर फार्मर है वो खुद करता ही नहीं है फार्मिंग, वो सिर्फ इंस्पेक्शन करता है या चेकिंग करता है, तो उसने एक लेबर को पूरे साल के लिए अपने फार्म पे काम रख रखा है। या फिर कभी कभी डेली बेसिस पे भी रखते हैं कि रोज आओगे तो रोज के बेसिस तुम अगर अच्छा काम करोगे तो मैं तुम्हें रोज बुला लूंगा और पर डे के इतने पैसे दूंगा। और इसके अलावा जो फार्म एक्टिविटी जैसे मैंने बोला कि जो ईयर के कुछ पर्टिकुलर सीजन होते हैं जिसमें के बहुत ज्यादा काम होता है, जैसे हार्वेस्टिंग वाला सीजन, अगर टाइम पे हार्वेस्ट नहीं किया चीजों को तो बहुत जल्दी क्या है वो खराब हो जाएंगी। तो ऑब्वियसली वो हार्वेस्टिंग वाले सीजन में जो है उनको रखते हैं। कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट रख दिया, पूरे साल सपोज नहीं रखा और हार्वेस्टिंग के टाइम पे किन्हीं किन्हीं लोगों को काम पे रख दिया। या फिर एज आई सेड कि पूरे साल के लिए अगर अपने फार्म में किसी को काम करने के लिए रखते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द फार्मर हु इज गिविंग एम्प्लॉयमेंट। यानी एम्प्लॉयमेंट जो है वो अलग अलग बेसिस पे हो जाता है, यानी कि इनका जो टाइम पीरियड है लैंडलेस लेबरर्स का या जो स्मॉल लेबर दूसरे के फार्म पे काम करते हैं वो फिक्स नहीं है। कभी तो एक दिन के लिए बुला लेंगे कि आज ज्यादा काम है, आज कोई कर नहीं पा रहा है, कोई और कोई लेबर नहीं आ पा रहा है इसीलिए, या फार्म एक्टिविटी के हिसाब से यानी सीजनल बेसिस पे, या फिर ये भी है कि पूरे साल के लिए भी कुछ लोग क्या करते हैं इनको एम्प्लॉयमेंट दे देते हैं। अब ये जो लेबर है इसकी मैंने बोला है कि जो वेजेस है वो डिफर करती हैं। तो मिनिमम वेजेस जो है विच इज सेट बाय द गवर्नमेंट इज ₹300 पर डे। अच्छा, पीपल अकाउंट जिनके पास पुरानी बुक्स है ना, किसी के जिनके 2011 का डेटा है उसमें लिखा है कि डेली जो इनकम है मिनिमम वेज वो 115 ही होनी चाहिए, मतलब वो कम से कम इतनी होनी चाहिए। तो सबकी बुक्स में डिपेंडिंग अपॉन कि आपका जो बुक है उसकी प्रिंटिंग ईयर कौन सा है, ये जो वैल्यू है ये डिफर करेगी। तो अभी जो अपने पास लेटेस्ट जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग मार्च 2017 के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट हैज सेट कि मिनिमम वेज जो है वो एक फार्म लेबरर की एटलीस्ट होनी चाहिए 300। दिस इज व्हाट गवर्नमेंट हैज सेड, पर ये असली में होता नहीं है, बिकॉज लेबर इज समथिंग विच इज प्रेजेंट इन अबंडेंस। बहुत सारे लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड होते हैं, तो ऑब्वियसली इस सेक्शन में बहुत कंपटीशन है। तो इसीलिए जो लोग इनको एम्प्लॉयमेंट देते हैं ना उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारी चॉइसेस होती है। तो ये लोग क्या नेगोशिएट कर लेते हैं, ये लोग ये बोलते हैं कि अगर तुम्हें काम करना है तो वी विल तो पे ओनली दिस मच, सपोज वी विल पे ओनली 150। इफ यू वांट टू डू वर्क then it's okay, otherwise we will employ somebody else. That is what these people say. And obviously जिसके पास एकदम ही काम नहीं है that person will think that कुछ नहीं से अच्छा तो है जितने भी पैसे मिल रहे। तो and he knows कि अगर उसने मना कर दिया तो कोई दूसरा है जो कि ये काम ले लेगा।
तो बिना काम के रहने से अच्छा तो है कि लोअर वेज पे ही क्या कर ले, अपने एग्री कर ले टू वर्क. So this is what is happening is in many of the villages of India. एंड सो जस्ट रिमेम्बर, मैं वापस रिपीट करी, ये जो ये 1 मार्क्स में आ जाता है कि गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज रेट क्या फिक्स कर रखा है. तो जो लेटेस्ट है दैट इज ₹300 पर डे. अब what is the confusion? Suppose I ask you the question and you write something else and I say कि नहीं आंसर तो ये होना चाहिए, but you say कि मैम मेरी बुक में ये लिखा हुआ. So the solution to it is that always write in brackets the year, ताकि जो एग्जामिनर है whoever is checking your paper knows that according to this date you are saying the correct answer, and if you are dealing with suppose some other date तो उसके according क्या डेटा है. So you will never lose marks. Whenever you are confused, just write the date. Just write the, at least you have to write the year. कौन से year के according government ने क्या डेटा दिया था. And preferably कोशिश क्या करो latest लिखो. But if you are not sure, you can write the previous one as well. But do write the year so that there is no scope of losing marks. So now we were talking about the wages कि गवर्नमेंट तो फिक्स कर देती है, बट क्योंकि बहुत कंपटीशन है और बहुत सारे लेबर अवेलेबल है, इसीलिए जो ये लेबर्स है इनको सही वेज नहीं मिलती है, बहुत कम मिलती है. नाउ वन स्टोरी इज गिवन इन योर बुक, ओके, रिलेटिंग टू दिस टॉपिक ओनली. और ये स्टोरी क्या है? ये है अबाउट 2 लेबर्स ऑफ द विलेज ऑफ पालमपुर. क्योंकि ये बार बार पालमपुर का एग्जाम्पल देके ही अपने को बता रहे. तो 2 लैंडलेस लेबरर्स है यहाँ पे जो दूसरों के फार्म पे काम करते हैं. ये है डाला और रामचंद्र. अब ये अमंग दी पुअरेस्ट नेटिव ऑफ विलेज है. ये विलेज के लगभग वो लोग हैं जो सबसे गरीब है, सबसे गरीब जो उनमें से. अब डाला जो है ये लैंडलेस लेबरर है और ये एज ए लेबरर है, वेज लेबरर. तो ये बोलता है कि ये लोग डिस्कस कर रहे हैं कि इफ यू नोटिस आई गेट द वेज ओनली ऑफ ₹160. 160 मुझे वेज मिलता है. एंड इफ यू हैव द बुक यू ऑल्सो ओपन योर बुक ऑन पेज नंबर 8 सो दैट यू कैन स्टडी दिस स्टोरी लिटिल बिट ऑफ डिटेल जो इन्होंने दे आर टेलिंग अस थ्रू दिस कार्टून. Now this person Dala is saying that it has become very difficult to find work these days because the only large farmers hire us, और वो भी सिर्फ थोड़े दिनों के लिए, या तो हार्वेस्टिंग के टाइम या सोइंग के टाइम. ज्यादा पूरे साल तो अपने को काम मिलता ही नहीं है. तो फिर जो ये दूसरी लेबर है रामकली की से कि हाँ जो अपने गांव के घनश्याम है ना, उन्होंने एक हार्वेस्टर खरीद लिया. तो अब तो अपने को और कम काम मिलेगा. हार्वेस्टिंग के टाइम मशीन ले लिया तो हमें और उनको हमारी बहुत कम जरूरत पड़ेगी. और वो बोल रही है कि लास्ट ईयर तो है ना, मैंने सिर्फ पूरे साल में 5 महीने मुझे काम मिला था. तो उस चीज को आगे बढ़ाते हुए डाला भी बोलता है कि हाँ अब तो ट्रैक्टर्स है प्लोइंग के लिए, हार्वेस्टर्स है हार्वेस्टिंग के लिए, थ्रेशर्स है थ्रेशिंग के लिए, और बीज हटाने के लिए भी बहुत सारे वीडीसाइड स्प्रे करने लगे हैं फार्मर्स. तो अपने को काम है ना बहुत कम मिलने लगे हैं क्योंकि जब ज्यादातर काम मशीन से हो रहे हैं तो उनको अपने लोगों की इसकी जरूरत ही नहीं है. तो अब ये लोग यही बोल रहे हैं कि अपनी और कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं. जैसे रामकली बोल रही है कि अब तो मुझे लगता है कि रायगंज जाके या ना जहाँ पे ब्रिक को बेक करते हैं, ब्रिक मेकिंग जहाँ पे होती है वहां पे जाके फैक्ट्री लेबर पे जैसे काम करना पड़ेगा क्योंकि गांव में तो अब काम मिलना बहुत मुश्किल है. तो डाला बोलता है हाँ जो लोकल मनी लेंडर है ना उससे मैंने 2000 रुपीज ले रखे हैं और 1000 रुपीज पिछले समर में मैंने लिए थे, और अभी कोई भी काम मेरे पास नहीं है किसी भी फील्ड में. मुझे पता नहीं मैं कैसे जो है पैसे वापस करूंगा. एंड आई हार्डली इनफ फॉर 2 स्क्वायर मील्स, मतलब 2 टाइम का खाना भी बहुत मुश्किल से इकट्ठा कर पाता हूँ. तो वही जो लेडी है वो भी यही बोलती है कि मेरी भी सिचुएशन जो है ऐसी है लगभग, क्योंकि जो डेट लिया हुआ है, डेट मतलब जो लोन लेके रखते हैं ये लोग, इसके कारण जो मनी लेंडर है और इसको लोन दे नहीं रहा है. तो वो यही बोल रहे हैं कि सिचुएशन जो है ना बहुत खराब है लैंडलेस लेबरर्स की या स्मॉल फार्मर लेबरर्स की, बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग एनी वर्क
और अगर वर्क मिलता भी है तो मिनिमम वेज रेट जो गवर्नमेंट वाली है वो मिलता ही नहीं है किसी को, क्योंकि इतने सारे लेबर फ्री अवेलेबल है कि लोग कम पैसे में भी, कम वेज में भी काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली जो इनकी वेजेस है वो बहुत कम है, ऊपर से अब रेगुलरली काम भी नहीं मिलता है बिकॉज ऑफ द कमिंग ऑफ द न्यू मशीनरी। So they are facing lot of problem and they are thinking that we should migrate, मतलब कि एक दूसरे एरिया में अपने को क्या कर लेना चाहिए, माइग्रेट कर लेना चाहिए। और माइग्रेशन जो है बेसिकली लोग तब करते हैं व्हेन दे नीड, if they find better opportunities in some certain areas. So about migration we will study in detail in our next class. Now let us move on to the next important factor, which is capital. Now, when we are talking about capital, what exactly is capital? We have studied कि जो capital है वो अपने use होता है during the process of production, and obviously it is very necessary to complete the production. और इसमें we have our fixed capital and working capital. So with this fixed and working capital, that is really required in the process of production. एंड स्पेसिफिकली जब अपने एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड जब से आए हैं तब से जो कैपिटल है उसकी रिक्वायरमेंट और ज्यादा हो गई। So because there is more requirement of capital, so then comes the importance of how people arrange for the capital. So first let us talk about the medium and the large farmers. Small farmers का तो we study in detail कि it is very difficult for them to actually arrange capital. तो मीडियम और जो लार्ज फार्मर है इनकी तो अपनी सेविंग्स होती है बिकॉज देयर इनकम इज गुड इनफ। तो पिछले जो अगले साल का जो इस साल की इनकम है उससे काफी पैसे सेव कर लेते हैं ताकि ये जो नेक्स्ट ईयर की फार्मिंग है उसके लिए अपना कैपिटल अरेंज कर सके। स्पेसिफिकली अगर वर्किंग कैपिटल है, भाई रॉ मटेरियल है, सीड्स है, फर्टिलाइजर्स है, और अगर ज्यादा सेविंग्स हो जाए तब तो ये लोग अपने लिए मतलब ये सब ट्रैक्टर्स और ये सब जो है इसमें भी इन्वेस्ट कर लेते हैं। और फिर ये अपने जो सेव्ड मनी है उनके बहुत सारे और यूजेस करते हैं, जैसे कि गिविंग इट टू लोन, गिविंग इट एज लोन टू द स्मॉल फार्मर्स, या फिर और कोई नॉन फार्मिंग एक्टिविटी शॉप सेटअप कर ली, ये सारी चीजें इनके बारे में भी अपने नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल में करेंगे। अब आ जाते हैं अपने स्मॉल फार्मर्स। So big farmers they have their own savings and they can arrange for capital. जो स्मॉल फार्मर्स है इनके लिए कैपिटल का अरेंजमेंट करना क्या होता है, थोड़ा मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है? सबसे पहली बात तो इनकी इनकम इतनी नहीं होती कि अगले साल के लिए सेव करके रख सके, तो इनको बोरो करनी पड़ती है मनी। कहाँ से? फ्रॉम लार्ज फार्मर्स, या फिर विलेज के जो मनी लेंडर्स है, या फिर ट्रेडर्स जो सप्लाई करते हैं इनपुट कल्टीवेशन के लिए। मतलब ट्रेडर जो है बहुत बार ऐसे करते हैं कि हम आपको या तो इतने पैसे दे देंगे या ये इक्विपमेंट दे देंगे या सीड्स है ये सब प्रोवाइड कर देंगे, इसके बदले में आपको अपना जो हार्वेस्ट है, यील्ड है, उसका इतना परसेंट जो अमाउंट है वो हमें ही देना पड़ेगा और हम उसको आगे मार्केट में सेल करेंगे। तो वो अलग अलग जो लेवल पे मनी लेंडर्स है या इनपुट देने वाले हैं वो अपने अलग अलग डील रखते हैं स्मॉल फार्मर्स के सामने। अब ये स्मॉल फार्मर्स जब लोन लेते हैं ना तो उसके ऊपर इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि स्मॉल फार्मर्स को पता है कि उनको लोन लेना जरूरी है, और जो बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं उनको भी पता है कि इनको लोन लेना जरूरी है और ये बैंक वैंक को कहीं जाएंगे नहीं क्योंकि इनको सारी डिटेल्स नहीं पता है, या इनके पास गिरवी रखने के लिए कोई चीज नहीं है, मॉर्गेज के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो इनको लोन जो है सबसे इजी तरीके से ट्रेडर से, इन्हीं लोगों से मिल सकता है। तो ये लोग क्या करते हैं, अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हाई रखते हैं, और क्योंकि ये लोग अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हाई रखते हैं इसीलिए क्या होता है कि ये जो स्मॉल फार्मर्स है ये आगे बहुत ज्यादा डेट में आ जाते हैं और मतलब डेट ट्रैप में फंस जाते हैं, यानी इनको पता नहीं चलता हम पैसे जो लोन है वापस कैसे चुकाएं।
बिकॉज खुद की अपनी इनकम इतनी ज्यादा नहीं होती, तो these people find it really problematic to repay the loan along with the high rate of interest. So now we will again study about one story that is given in your book. And this story, if we notice, tells us the condition of a small farmer जो फार्मिंग करना चाहती है and she wants to earn money, and इसके साथ साथ she also wants to work on she has to actually work on somebody else's farm to earn more income. अब देखो, the name of this small farmer and the lady is Savita. अब ये जो है ये स्मॉल फार्मर है और इसके पास ना 1 हेक्टेयर का लैंड है. नाउ शी थिंक्स कि मैं इस लैंड पे क्या कल्टीवेट करूंगी, वीट कल्टीवेट करूंगी. वीट कल्टीवेट करने के लिए शी नीड्स कैश. क्यों चाहिए? टू बाय सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, और उसके पास जो पुराने फार्म के इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विपमेंट्स हैं, जो भी टूल्स हैं, उनको रिपेयर करवाने के लिए. इन सब के लिए एटलीस्ट शी विल नीड ₹3,000 एटलीस्ट. ठीक है. So she went to one of the money lender of the village, whose name was Tejpal Singh. He said that I need money for doing my farming. So he said, okay, I'll give you the money, but in return, आपको जो इंटरेस्ट रेट है, it will be 24%. It is really high. 24% जो इंटरेस्ट रेट होती है वो बहुत ज्यादा होती है. तो 4 मंथ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 24% रेट का इंटरेस्ट देना पड़ेगा. उसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं, यू विल हैव टू वर्क ऑन द फील्ड. तेजपाल टोल्ड हर कि हार्वेस्टिंग वाले सीजन के टाइम पे मेरे फील्ड पे यू विल हैव टू वर्क, और वेज उसकी मैं सिर्फ कितने दूंगा? ₹100 पर डे. तो इमेजिन, एक तो ठीक है लोन लिया, उसका इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा ले रहा है, उसके अलावा एक और कंडीशन है कि मेरे लैंड पे काम करना पड़ेगा. किस रेट पे? ₹100 पर डे सिर्फ. अब ये जो फार्मर है, ये जो लेडी है, शी नोज इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि हार्वेस्टिंग सीजन बहुत बिजी सीजन होता है, हार्ड वर्क चाहिए होता है. वो अपने फार्म में भी हार्वेस्टिंग करेगी, फिर वो आके इनके फील्ड पे भी हार्वेस्टिंग करेगी. काम पैसे भी कम मिलेंगे और लेबरर के जैसे काम करेगी, अपने फील्ड से काम करेगी. उसके अलावा अपनी घर की भी तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है. शी इज अ लेडी विथ 3 kids at home, so she has to do lot of work of her home also. तो उसको पता है कि अगर मैं इस एग्रीमेंट से हाँ बोल दूंगी तो मुझे बहुत ज्यादा ही हार्ड वर्क करना पड़ेगा और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. But still she agrees to this point. Why does she agree to this point? Because she knows कि गांव में जो लैंडलेस या गरीब लेबर है, उनको पैसे लोन बहुत कम लोग देते हैं, क्योंकि उनके पास प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं होती. तो अगर लोन चाहिए, अगर उसको अपने फार्म में फार्मिंग करनी है, तो उसको जो मनी लेंडर है उनकी कंडीशंस को मानना ही पड़ेगा. So knowing all the situations, still she agreed to these conditions because she wanted to cultivate in her own farm. Now, so this was the story which tells us what is the condition of the landless laborer. 2 story पढ़ी आपने. एक में तो पूरे लैंडलेस लेबरर थे और कैसे उनकी क्या सिचुएशन थी, काम कैसे कम हो रहा था, और एक है जिसमें लेडी ट्राई कर रही है अपना खुद का एग्रीकल्चर करने का, पर प्रॉब्लम है कि पैसे नहीं है. तो अगर वो लोन लेगी तो उसको बहुत ज्यादा ही महंगा पड़ेगा, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी इंटरेस्ट रेट बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ द वर्कलोड दैट शी विल हैव टू सफर. अब नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग. नेक्स्ट थिंग अपनी क्या है? इट इज दैट जो हमने लार्ज फार्मर्स की बात की थी कि उनके पास सेविंग्स कहाँ से आती है, या वो लोग अपने सेल करने के बाद अपना जो प्रॉफिट है उसका क्या करते हैं, वो अब आ जाते हैं अपने.
ये कहीं ना कहीं we'll see it is somewhere involved with capital. That is why we are studying it in this link. अब ये जो बड़े वाले फार्मर्स है, सॉरी स्मॉल फार्मर्स है, ये इनके पास तो एक्स्ट्रा पैसे होते ही नहीं है। इनके पास जो हम बोलेंगे जितना भी हार्वेस्ट होता है, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग थोड़ा तो ऑब्वियसली अपनी फैमिली के लिए ही रख लेते हैं, खुद के कंजम्पशन के लिए रखते हैं। आफ्टर दैट इसके अलावा इनको जो चीजें चाहिए होती है, जो इनके पास एक्स्ट्रा हम बोलेंगे, सपोज व्हीट है या जो भी इनका फार्म का यील्ड है, जो भी क्रॉप है, उसको वो बचे हुए को जाके क्या करते हैं, मार्केट में बेच देते हैं। तो ऑब्वियसली जो उन्होंने मार्केट में बेचा है बचा हुआ, उससे इतनी भी बहुत ज्यादा इनकम नहीं होती है। इनकी जो बाकी जरूरतें हैं वो भी मुश्किल से पूरी होती है इससे। जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनके पास सरप्लस इसलिए बहुत कम होता है क्योंकि प्रोडक्शन ही उनका स्मॉल है, क्योंकि लैंड एरिया स्मॉल है तो प्रोडक्शन स्मॉल है, तो काफी पार्ट एक तो ये अपनी फैमिली के लिए रख लेते हैं और बहुत बचा हुआ हिस्सा जो बेचते हैं उससे मुश्किल से इनकी लाइवलीहुड चलती है। अब हम देखेंगे कि जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं, इनके पास ऑब्वियसली बहुत ज्यादा सप्लाई होती है, इनके लैंड एरिया बहुत बड़ा होता है, तो इसीलिए ऑब्वियसली ये लोग क्या करते हैं, इनका प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ये लोग जो अपनी सारा का सारा यील्ड है वो मार्केट में सेल करते हैं। ऑब्वियसली अपने कंजम्पशन के लिए भी रखते होंगे, पर उससे इनके टोटल यील्ड में कोई ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि इनकी यील्ड बहुत ज्यादा होती है। अब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जो अपना सामान जो यील्ड है वो लोड करके मार्केट एरिया में जाते हैं बेचने, किसको, ट्रेडर को, जो होलसेल और जो लार्ज अमाउंट में सारा सामान खरीद लेते हैं, व्हीट या जो भी चीज है। और फिर ये जो ट्रेडर्स है ये आगे जाके ये सामान कहाँ बेचते हैं, टाउन्स और सिटीज में बेचते हैं। तो दैट मीन्स कि ये जो लार्ज और मीडियम फार्मर्स हैं, इनके पास बहुत सारा जो अमाउंट है इन टर्म्स ऑफ मनी आ जाता है आफ्टर सेलिंग सो मच ऑफ यील्ड एंड प्रोड्यूस। अब ये जो इनके पास पैसे आए इसका ये क्या करते हैं, या तो ये लोग इस पैसे को क्या करते हैं, ज्यादातर बैंक से रख देते हैं, तो ऑब्वियसली क्या होगा, उससे इनका इंटरेस्ट आ जाएगा और मनी सेव भी रहेगा। एक लार्ज पार्ट ऑफ इनकी अर्निंग्स जो है, जो इन्होंने सेव की है, वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से रखते हैं कि नेक्स्ट फार्मिंग सीजन में जो हमें वर्किंग कैपिटल के लिए चीजें चाहिए उसके लिए अपनी सेविंग्स रखते हैं। सिर्फ वर्किंग कैपिटल नहीं, फिक्स कैपिटल, सपोज इस बार बहुत प्रॉफिट हुआ है तो वो सोचेंगे कि इस बार एक नया ट्रैक्टर खरीद लेते हैं या और कोई मशीन भी खरीद लेते हैं, तो वो लोग अपने नेक्स्ट फार्मिंग रिक्वायरमेंट्स के अगले सीजन के लिए अपनी सेविंग अच्छे से रखते हैं। तो इनका कहीं ना कहीं और प्रोडक्शन बढ़ेगा, इनकी प्रॉफिट और बढ़ेगी और इनकम आएगी और कैपिटल होगा। कुछ जो बड़े फार्मर्स है वो अपनी सेविंग्स क्या करते हैं, जैसे जो लैंडलेस फार्मर्स हैं या पुअर फार्मर्स है, स्मॉल फार्मर्स, उनको एज लोन दे देते हैं जिससे भी उनको इंटरेस्ट मिलता है, तो यानी उनका उससे भी प्रॉफिट होता है। कुछ फार्मर्स जो हैं एज आई सेड कि इससे ये अपने ट्रैक्टर्स वगैरह तो अपने फार्मिंग से रिक्वायर्ड खरीदते हैं। कुछ लोग सोचते हैं हम अपने और इनकम बढ़ाए, कोई दूसरा काम कर ले, तो वो लोग या तो कैटल खरीद लेते हैं फार्म के लिए या बाद में उससे रिलेटेड डेयरी प्रोडक्ट्स बेचने के लिए। ट्रक खरीद लेते हैं क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का काम भी अच्छा चलता है, गांव से लेके शहर में सिटी की तरफ भेजना उसको, या गांव से जो प्रोड्यूस है उसको भेजना टू द बिगर विलेजेस एंड द टाउन्स एंड सिटीज। कुछ लोग क्या छोटे मोटे शॉप्स भी खोल लेते हैं इससे, जैसे ग्रोसरी स्टोर खोल लिया या और कोई भी ऐसा स्टोर खोल लिया जिससे क्या है उनकी एक्स्ट्रा इनकम हो, एक्स्ट्रा काम हो। तो ये जो सारा है ये कौन लोग करते हैं, लार्ज और मीडियम फार्मर्स करते हैं। सरप्लस का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा, यानी एक्स्ट्रा जो वीट। स्मॉल फार्मर्स को अपने घर पे रख के एक्स्ट्रा वीट जो है वो बेच के थोड़ा बहुत अपना घर चलाते हैं। जो लार्ज फार्मर्स है वो उसको सेव करते हैं, बैंक में करते हैं, फ्यूचर फार्मिंग रिक्वायरमेंट्स के लिए लोगों को लोन देते हैं, आगे के लिए एक और काम के बारे में सोचते हैं, सेटिंग अप सम न्यू शॉप और स्टार्टिंग अप विद सम न्यू बिजनेस। दिस इज हाउ दीज पीपल यूटिलाइज देयर
surplus and their extra money or capital as well. ठीक है. So today we'll do only till this point. Tomorrow we'll wind up the chapter and we'll complete the chapter where we'll study about the other things. Basically हम इसमें वो जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज है उससे रिलेटेड चीजों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि बाकी पूरे में अपने लोगों ने फार्मिंग से रिलेटेड ही पढ़ा है. इसमें एक दो चीज जो अपने माइग्रेशन से रिलेटेड करेंगे कि स्मॉल फार्मर्स जो हमने स्टोरी पढ़ी थी डाला और रामकली की, now the people migrate from one area to other for better opportunities. Generally जो हम बोलेंगे कि for getting more work. ऐसे तो माइग्रेशन लोग for better living standard भी करते हैं. जैसे जनरली लोग क्या है प्रेफर दैट दे वांट टू सेटल इन सिटीज, क्योंकि वहाँ पे भाई लाइफ अच्छी होती है, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होता है, अच्छी कंडीशन होती है, सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होती है, मॉल्स होते हैं, डेवलपमेंट होती है, दिस एंड दैट. तो माइग्रेशन बहुत सारे पर्पसेस के लिए हो सकता है, बट यहाँ पे अपने माइग्रेशन जनरली जो लेबर्स करते हैं वो करते हैं फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. So this is the thing that is you can say specific to generally our villages. Villages से ही लोग ज्यादातर cities की तरफ मूव करते हैं. उसके बाद हमने लेबर डिटेल में कर लिया. लैंडलेस लेबर काम करते हैं, उनकी वेजेस कम होती हैं गवर्नमेंट के मिनिमम सेटअप करने के बाद भी. इसके रीजन क्योंकि कंपटीशन बहुत होता है एंड दीस कंडीशन, तो वेजेस कम होते हैं. उसके बाद हमने कैपिटल का कर लिया कि कैपिटल का कैसे अरेंजमेंट होता है स्मॉल और मीडियम और लार्ज फार्मर. Now in our next class we'll do the non-farming activities and we'll wind up the chapter. I suppose everything is clear. If you have any doubts, feel free to ask. And now we'll meet in our next class.